Good morning, student. Today we are going to study the poem named Risks, written by Janet Rand. Introduction of the poet. The poem Risk, written by Janet Rand, was born in 1923 and died in 1987. About the poem, Risk is a motivational poem. Every act to be done by human beings anticipates risk. Hope may result into despair and life into death. Risk is an integral part of life. We can say that life is full of risks and overcome fear one needs courage. Success is all about having the courage to take risks. The poet gives a message to all human beings to take risks if they want to achieve something. If we don't take risks, there is a chance for avoiding sorrow and painful situations in life. But we will be missing so much. Without taking risks, we would not learn anything. Now, student, I am reading aloud the poem. Please listen to me carefully. To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk a failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitudes, chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. Now, student, I am taking the new words used in the poem and explaining them one by one. A situation that could be dangerous or have a bad result. जोखिम, खतरा, जिसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति. सेंटिमेंटल, अनडिजायरेबली इमोशनल. भावुकता, इन्वॉल्वमेंट, टू एक्ट ऑफ टेकिंग एक्टिव पार्ट और नीन इंटरेस्ट इन समथिंग. इन्वॉल्वमेंट का वैसे शाब्दिक अर्थ शामिल होना होता है. यहाँ बताया गया है किसी चीज़ में साझेदारी करना, उसमें भाग लेना, उसमें रुचि रखना. एक्सपोज,
ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना, प्रस्तुत कर देना, प्रकट कर देना। नाइव, सॉल्विंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें अनुभव की कमी हो, नासमझ। हजार्ड, डेंजर, खतरा। सोरो, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, ग्रीफ, दुख या शौक। चेन, रिस्ट्रेंट, बंधा हुआ। स्लेव्स, पीपल हैविंग नो फ्रीडम ऑफ एनी काइंड, यानी ऐसे लोग जिनके पास किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं हो। फोरफिटेड, लॉस्ट, यानी खो देना, खोया हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम in simple words. Please listen to the poem. To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. यानी पहली पंक्ति थी जिसमें कहा गया है कि हंसने में मूर्ख प्रकट होने का खतरा है और रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए जब अपन हाथ बढ़ाते हैं तो उसमें अपना शामिल होने का खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी भावनाओं को प्रकट कर देने में अपनी जो वास्तविकता है, ट्रू सेल्फ है, वह सामने आने का खतरा है। To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. समूह के सामने, भीड़ के सामने जब हम अपने विचार और अपने सपने रखते हैं तो उसमें अपने को नासमझ दिखने का खतरा है। To love is to risk not being loved in return. प्रेम करने में जो जोखिम है, खतरा है, वो ये है कि हमें बदले में प्रेम मिलेगा या नहीं। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू लिव रिस्क इज टू डाइंग, जीवन में मृत्यु का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, प्रयास करने में असफलता का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन because the greatest hazard in life is to risk nothing. लेकिन कवि कहता है हमें खतरा अवश्य ही उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा वही है कि हम कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. वह व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाता है, वह कुछ नहीं करता है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है और वह कुछ भी नहीं बन सकता है। They may avoid suffering and sorrow. वे कुछ समय के लिए दुखों से, पीड़ा से, संकट से बच सकते हैं, बट दे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। लेकिन वे कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ सकता है, वे उन्नति नहीं कर सकते हैं, वे प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और यहाँ तक कि वे जीवित भी नहीं रह सकते हैं। Chained by their certitudes, they are slaves. कि वे व्यक्ति जो कि जिन्होंने अपने आप को निश्चितता के भावनाओं में जकड़ रखा है, बांध रखा है, वे गुलाम हैं। They have forfeited their freedom. उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। Only a person who risks is truly free. Only a person who risks is truly free. वह व्यक्ति
जो जोखिम उठाता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। तो स्टूडेंट्स, अपन ने इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब इसका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न है, राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम, यानी कविता की जो मुख्य विषय वस्तु है उसके बारे में अपने को लिखना होता है। तो इसका आंसर होगा, रिस्क्स इज़ द मोटिवेशनल पोएम। यह एक प्रेरणादायी कविता है। इट मोटिवेट ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इन लाइफ। यह मनुष्य को, इंसानों को अपने जीवन में जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। एज देयर इज रिस्क इन डूइंग एवरीथिंग, कि प्रत्येक कार्य को करने में जोखिम है, खतरा है। इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ वी मस्ट टेक रिस्क। यदि हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही जोखिम उठाना चाहिए। बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्क वी कांट गेट एनीथिंग इन लाइफ, क्योंकि जीवन में हम बिना रिस्क के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ए रिस्क फ्री लाइफ इज़ ए लाइफ ऑफ नॉन अचीवमेंट एंड फेलियर, यानी जोखिम से फ्री, मुक्त जो जीवन है वह बिना उपलब्धियों वाला और असफल जीवन है। इसलिए हमें जोखिम उठाना चाहिए। ये इस कविता की मेन थीम भी है और इस प्रश्न का आंसर भी है। तो आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।